Okay, so 50 participants have already logged in. I think we should begin the seminar now. A very warm welcome to all of you. Working day na bada jodaya te baddal khub khub dhanyawad. So after the huge success of the Medical Pahel initiative undertaken by Borivali Youth Forum under the aegis of Borivali Mahajan, this is the second initiative, which is the BYF webinar series being undertaken in the lockdown by Borivali Youth Forum under the 50th year, which is the Golden Jubilee year of Borivali Mahajan. And today is the first webinar which is going to be conducted by Hardik Dedhia. Hardik Dedhia is a multi-talented, multifaceted personality, and one of his skills is shairi, poetry, and skit writing. He is also a very good professor. He is also a very good actor, and he is acted in a lot of short films, and he directs and writes as well. And today he is going to take up a seminar on shairi, poetry, and skit writing. And he is also going to take up a seminar on basic acting skills on 7th of June. So the screen you see right now is the series of webinars which are decided, and you have the dates. You can take a screenshot of this picture which is on the screen. And without much further ado, I now request Hardik Dedhia to take over. Please, Hardik, it's over to you. Thank you so much, Heer. Hello guys, good afternoon. I hope I'm audible to everyone. अच्छा, सबसे पहले तो before we even begin this webinar on शेरो शायरी and poetry skit writing for beginners, let me tell you one thing. अगर आप लोग Zoom ऐप से पहली बार अगर आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आप पहली बार अगर कोई Zoom ऐप पे आ रहे हो, तो आपके वहाँ पे अगर आप सेल फोन से हो तो एक चैट बॉक्स है आपके वहाँ पे, आप एक आइकन रहेगा जिसमें एक चैट बॉक्स रहेगा. तो अगर आपको कभी भी ये सेमिनार के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आता है, शायद आवाज का प्रॉब्लम होगा या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा या फिर कहीं पर आपको कोई सवाल पूछने होंगे मुझसे, तो प्लीज आप वो चैट बॉक्स एक्टिव रखिएगा और वो चैट बॉक्स पे आप बिंदास कभी भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा. एंड रादर आई वुड लाइक यू टू बी वेरी एक्टिव ऑन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन हियर व्हाट यू ऑल फीलिंग अबाउट. So yes, that's how it goes. So without any further delay, let's begin. I hope abhi tak as of now there are 52 participants and more are about to join. So let's just begin with the simple thing first. So here, do you write? I do not write. Okay, you don't write. Assuming you were not expecting this question. So basically यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ लिखा ही नहीं होगा, या काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ लिखा भी है, कुछ शायर भी मौजूद होंगे यहाँ पर. तो आज मैं तुमको एक बात बिफोर स्टार्टिंग में क्लैरिफाई कर देता हूँ गाइस. This is basically not for those who have already mastered the skills of शायरी, poetry, skit writing, etc. ये उन बिगनर्स के लिए. बट डेफिनेटली यू प्लीज स्टे ट्यून बिकॉज सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है. वेल मुझे इतना ज्यादा आता नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रोफेशनल और वेरी गुड शायर, पोएट, स्किट राइटर नहीं हूँ. जितना मुझे आता है उतना मैं सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा गाइस. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून. हाँ, अगर आपको वाकई में सीखना है तो मेक श्योर दैट आपके पास एक पेन, पेपर वगैरह सब कुछ हो सो दैट आप नोट डाउन कर सके. और अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से आलस से भर चुके हैं, सो नो इश्यूज, यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. सो स्क्रीनशॉट्स इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. सो विद दिस लेट्स बिगिन. As of now there are 53 participants and let's begin. So why हम कोई भी चीज सीखने से पहले हमको खुद को एक क्वेश्चन पूछना होता है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं. जैसे why should we actually write? Why should everyone write rather? क्या आपको क्या लगता है क्यों सबको क्यों लिखना चाहिए? क्या लिखना जरूरी है? What do you feel guys? चैट बॉक्स पे प्लीज अगर आप एक्टिव हो सकते हो तो चैट बॉक्स पे लिखिए. Why should everyone write? To express feelings. Okay. Maybe to express feelings. Okay. Opportunity to express yourself. True. To share, to express.
Okay. To convey whatever you want to say. Fantastic. To write what you feel, what to feel to world. Okay. Beautify us. Yes. To put imaginations to word, to express things in our own words. Okay. So there are a lot of people, rather I would say सब majority लोगों को ये लगता है कि writing हम ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम अपने आप को express कर सकते हैं. Well, definitely आप सभी सही हो. To motivate or spread positivity in the surroundings, some things can be expressed in words rather than one can or face to face. Okay, one on one or face to face. Okay guys, अब मैं ना आपके सामने कुछ लाइंस मैं रखना चाहता हूँ. आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे. ये लाइंस मैंने नहीं लिखी है, ये लाइंस लिखी है मेरे एक बहुत अच्छे फेवरेट एक पोएट है, एक शायर है, पीयूष मिश्रा जी. उन्होंने ये लाइंस लिखी है. आई होप आप लोग को ये लाइंस पढ़ के थोड़ा सा समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सुकून मिलता है सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, चीख भी लेता हूं और आवाज भी नहीं होती. एग्जैक्टली गाइस. टुडे राइटिंग इज नॉट जस्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. ऑफ कोर्स इट इज एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, लेकिन राइटिंग के सिर्फ एक्सप्रेशंस और इन सब मतलब जस्ट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जस्ट टू राइट ब्यूटीफुल, ये सिर्फ इतना ही उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है. राइटिंग उससे कहीं ज्यादा हो चुकी है. Today, when we actually are in a surrounding where we are surrounded by stress, depression, anxiety, जब हमारे पास एक अकेलापन हो गया तो हमारे पास कोई यार नहीं है जिसके साथ हम लोग कुछ बांट सके. So yes, definitely writing can help you there. And of course, when there is no one, yes, exactly. जब आपके अंदर कुछ feelings हो, that is nothing but expressing yourself and you want to say it loud. तुमको बहुत जोर से चीखना है, पर आप चूज करते हो कि नहीं, मुझे एक्सप्रेस किसी और तरीके से भी करना है. सो यस, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ यू शुड राइट. भले ही आप अच्छे शायर ना हो, भले ही आप अच्छी कविताएं ना लिख पाते हो, भले ही आप अच्छे कुछ नाटक वगैरह ना लिख पाते हो, आप कुछ भी लिख नहीं पाते हो, बट स्टिल आपको लिखना जरूरी है. वो लिखना क्यों जरूरी है? बिकॉज वो लिखने से ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, शायद जानवर भी आवाज कर लेता है, लेकिन इंसान ही एक ऐसा एक जानवर है इस धरती पर जो लिख पाता है. एंड आप सभी को पता है कि एक तलवार से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है. तो डेफिनेटली राइटिंग शुड बी समथिंग विच यू ऑल शुड डू. नॉट जस्ट फॉर राइटिंग समथिंग पोएटिक और समथिंग एक शेरो शायरी लिखने के लिए नहीं, बट रेगुलर डेज में भी आप डायरी वगैरह लिख सकते हैं. सो आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले? टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक, अगर आपको राइटिंग का शौक है या फिर आप अभी तक लिख नहीं पाते थे और अभी आपको लिखने की कोशिश करनी है, तो आप कैसे वे में जा सकते हैं सो दैट आप इस राइटिंग के प्रोसेस को एंजॉय करें. सो दैट आप अगर पोएट्री करना चाहते हैं, आप अगर शेरो शायरी करना चाहते हैं, तो कैसे वे में अपने आप को आप थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, एक प्रोसेस में ढाल सकते हैं, so that you can do better poetry, you can do better shiro shairi, and of course you can write better skits. So it is basically expressing yourself, yes, and to actually express your inner self. So let's begin with this particular session, that is nothing but basic tips for writing. अब यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगा जो किसी भी चीज में आप राइटिंग करना चाहते हो, चाहे आप शेरो शायरी करना चाहते हो, चाहे आप पोएम्स लिखना चाहते हो, चाहे आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, या कुछ भी आप लिखना चाहते हो, एवरीथिंग आपको वहां पे ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है गाइस. सो लेट्स बिगिन विद दैट. सबसे पहला चीज, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज थिंकिंग. दैट इज सोचना क्यों जरूरी है गाइस? व्हाई डू यू थिंक थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट? जमाने को बदलने की काबिलियत वही रखते हैं जो सोचते हैं. एग्जैक्टली गाइस. हम दिन भर में 1000 ख्याल अपने मन में रखते हैं, राइट? कभी भी हम कहीं पर भी खाली नहीं बैठे होते हैं. हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोचते जरूर हैं. बस फर्क इतना होता है कि हम जो सोचते हैं वो बहुत रैंडम होता है. हम एक फ्लो में नहीं सोच पाते. जैसे अगर मैं कहीं मार्केट में जा रहा हूं तो मेरे दिमाग में चलता होगा कि मुझे क्या क्या चीजें लेनी है, मैं सोचते रहूंगा उन चीजों के बारे में. तभी अगर मार्केट में चलते चलते अगर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है तो मेरे दिमाग में वो क्या लेना है उसकी जगह पे थॉट प्रोसेस ऐसा चलेगा, अरे इस इंसान ने मास्क क्यों नहीं पहना है, अरे ये शायद जो कोरोना वायरस है उसको फैला सकता है. आगे जाके तुमने देखा तो एक दुकान पर बहुत अच्छी लाइन लगी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, तो वहां पर तुम्हारी थॉट प्रोसेस में ऐसा सब आना स्टार्ट हो जाएगा कि वाह, यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है, देखो कितने से डिसिप्लिन वे में लोग चल रहे हैं. What I'm trying to say you here guys is कि हम जिस हिसाब से सोचते हैं,
हमारे थॉट प्रोसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब भी हमको कुछ लिखना होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसको चैनलाइज करना है एक डायरेक्शन में। सो वो कैसे किया जाए, हम कैसे थिंकिंग को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता रहा हूं जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए, एंड आई एम श्योर दैट आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। तो आप तभी अच्छा लिख पाओगे जब आप अच्छा सोच पाओगे। तो दिस इज द की वर्ड गाइज, आप तभी अच्छा लिख पाओगे जब आप अच्छा सोच पाओगे। अ पर्सन हु कैनॉट थिंक कैनॉट राइट, दैट्स अ बेसिक रूल। सो आपको अगर अच्छा लिखना है तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। सो आप कैसे अच्छा सोच पाओगे, आपकी थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ राइटर और फॉर एनीवन हु वांट्स टू राइट इज टू रीड। आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड इज, अरे यार ये पढ़ना पड़ेगा मतलब इतनी सारी मतलब इतनी सारी आपको ये क्या मतलब, आई मीन व्हाई डू यू वांट टू रीड सो मेनी बुक्स? तो सर बुक्स लिखना जरूरी है क्या, मतलब बुक्स पढ़ना जरूरी है क्या? आई मीन इज इट ओके इफ आई डोंट रीड बुक्स, तो भी क्या मैं लिख सकता हूँ? वेल माय आंसर टू यू विल बी वेरी सिंपल। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर डू यू रीड इज टेक्निकली नॉट इंपॉर्टेंट। आजकल हम सभी को पता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर जितने भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर यंगस्टर्स। हम लोगों के घर पे बहुत सारी किताबें नहीं होती है, या रादर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते, या बहुत सारे जन ऐसे भी होते हैं जिनके पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। हम इतनी भागती दौड़ती हमारी जिंदगी है, वेयर वुड वी रीड दैट बुक्स? तो डेफिनेटली वी हैव एन ऑप्शन, वी हैव सेल फोन्स इन आवर हैंड एंड वी हैव इंटरनेट एज आवर वेपन। हमारे पास इंटरनेट है गाइस। हम इंटरनेट पे एक्चुअली में, अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप रेगुलरली आप अपडेट्स लेते हो चीजों की, या ट्विटर पे हो, तो देर आर सो मेनी पीपल हु राइट अ लॉट, हु राइट सो अमेजिंग पोइट्रीज, हु राइट सो अमेजिंग शेरो शायरी। आप उनकी शेरो शायरी भी पढ़ सकते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज टू रीड। आप जितना अच्छा रीड करोगे, आपकी एक्चुअली थिंकिंग प्रोसेस वैसी ही डेवलप होनी चालू हो जाएगी। सो राइट नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम वेयर डू यू रीड इट इज योर चॉइस गाइस। अच्छा, सिर्फ पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं गाइस, आप पढ़ने के साथ साथ उसको रीड करने कैसी उसकी कला है, उसको कैसे रीड करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। व्हाई यू डू दिस प्रोसेस, मतलब आपको लिसनिंग करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन टू पीपल। आपको बड़े बड़े शेरो शायर के यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग अपने शेरो शायरी का रेसिटेशन का वीडियो अपलोड करते हैं। आप उनकी कविताएं सुने, सिर्फ पढ़े नहीं, सुनना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार हम जो शायरी लिखते हैं ना, वो साउंड के लिए लिखते हैं। हम राइमिंग स्कीम ढूंढने जाते हैं, शब्दों में जब हम राइमिंग स्कीम ढूंढने जाते हैं तो शायद हमको नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हम लोग उस चीज को आई मीन सुनते हैं, तो हमें राइमिंग स्कीम थोड़ी ज्यादा बेटर वे में हम लोग को समझ में आती है। तो यस गाइज, सिर्फ रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे शायर, अच्छे कवियों की कविताएं सुननी भी चाहिए। आप अगर कविताएं सुनेंगे तो आपको आपकी कविता लिखने में भी एक आसानी होगी कि आपको कौन से मीटर में या कितने वे में, आपको कैसे वे में लिखना है और ये कैसे वे में बोली जाएगी। So yes, definitely guys, you will have to read and you will have to also listen to other people's poetries and other people's work. उसके अलावा सर हमने पढ़ लिया, हमने लोगों की कविताएं भी सुन ली, उसके बाद क्या करना है? आपको बातें करनी है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हर लेखक शायद अच्छा ओरेटर नहीं होता है। जो भी अच्छा लिख पाता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बोल पाए या अच्छे ढंग से बोल पाए या वो बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं पब्लिक स्पीकर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये बात जरूरी है कि आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप उस चीज के बारे में बातें करें, आप उस चीज को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें। ध्यान रखें, आप जितनी चीजें बोलेंगे उसमें से सिर्फ 5% चीजें आप लिख पाएंगे। सो आप जितना अच्छा बोलेंगे, वो आपका बोलने का तरीका जो है वो रीडिंग और लिसनिंग से थोड़ा सा इंप्रूव होता जाएगा। और आप जितना बोलेंगे उतना अच्छे वे में आप खुद को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपको नए नए वर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ खुद का बोलना जरूरी है क्या? मतलब अगर मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूं तो मैं ही बोलते रहूंगा, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, या मेरे जो विचार है, जो मेरे जो थॉट प्रोसेस है, वो ही सिर्फ मैं बताते जाऊंगा? क्या ऐसा भी जरूरी है क्या? नहीं गाइस। एक अच्छा लेखक तभी बन सकते हो, या एक अच्छा राइटर या कुछ अच्छा लिखना तभी आपका पॉसिबल है जब आप किसी और के पर्सपेक्टिव को भी जाने, आप किसी और का परसेप्शन भी समझने की कोशिश करें, किसी और का व्यू पॉइंट भी आप जानने की कोशिश करें।
जो चीज शायद आपके लिए सही होगी वो किसी और के लिए गलत हो सकती है, और शायद आप दोनों ही सही हो सकते हो. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ. कि हम यहाँ पर क्या करने वाले, हम यहाँ पर यही सीखना चाहते हैं कि सिर्फ मेरे विचार आप मत जानिए, आप खुद के विचार भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, कि आप क्या समझते हैं कि राइटिंग कैसे वे में होनी चाहिए. सो यस, बेसिक आपको अगर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है तो yes guys, these are the 4 things you need to understand while improving your thinking process, which is the first step of writing: reading, listening, talking and expressing, and understanding others perception too. आपको किसी और के perception को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. So with this sir, हमने थिंकिंग के बारे में तो समझ लिया, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जैसा पढ़ोगे या सुनोगे आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी ही डेवलप होगी. अंडरस्टैंड गाइस. शायद ऐसा हो सकता है कि कई बार आप कुछ अगर पढ़ रहे हैं या किसी के बारे में आप सुन रहे हैं तो आपको अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको कुछ गलत लग रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड क्विट दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड आपको कोई और चीज समझनी पड़ेगी, कोई और चीज पढ़नी या सुननी पड़ेगी. क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, कोई एक एग्जाम्पल देके बात करो. ओके, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया हूँ, बट जस्ट एक जनरल डिस्कशन होता है. हम यूथ के साथ भी ये बहुत बार होता है. कुछ लोग होते हैं जो बीजेपी सपोर्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कांग्रेस सपोर्टर्स होते हैं. सो बेसिकली जब बीजेपी सपोर्टर और कांग्रेस सपोर्टर मिल जाते हैं तो आपस में एक युद्ध छिड़ जाता है. अब आप अगर कौन से बैकग्राउंड से आए या आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है उस हिसाब से आपका एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक एनवायरमेंट रिलेटेड इशू ऑल्सो. काफी सारे लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमको क्लेanलीनेस रखनी है. कुछ लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए सीखते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरमेंट, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है. सिमिलर वे में जैसे आप रीडिंग करते हो, आप जैसा जिसका काम आप पढ़ोगे, जिस लेखक के बारे में आप पढ़ोगे, जिस लेखक की कविताएं आप सुनोगे, जिस पोएट की कविताएं आप सुनोगे या किसका आर्ट वर्क आप पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से ही आपकी थिंकिंग भी डेवलप होती रहेगी. So yes, make sure that you select a very good mentor for yourself before even reading that particular thing. So yes, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप पढ़ोगे, आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी ही डेवलप होगी. So yes, अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अगर क्लियर है, so we can move on to the next part, that is inspiration. अगर आप सोच सही सकते हो तो आपको एक अच्छी प्रेरणा भी बहुत जरूरी है. किसी भी आर्ट वर्क को लिखने के लिए एक प्रेरणा स्रोत होना बहुत जरूरी है, एक इंस्पिरेशन होनी बहुत जरूरी है. एक कविता, मतलब एक 2 पंक्तियां हैं उसके बारे में. एक कविता हम भी लिख जाएं, बस कोई प्रेरणा मिल जाए. सो आपको इंस्पिरेशन ढूंढनी है. दैट इज नथिंग बट आपको कविता या शेरो शायरी लिखने की एक वजह ढूंढनी है. सर वो वजह कहां से मिलेगी, वो वजह कैसे मिलेगी? वजह कुछ भी हो सकती है. वजह हो सकती है कोई इंसान, अ पर्सन फ्रॉम योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी हो सकता है, उसके बारे में भी कविताएं लिखी जा सकती हैं. आपके पेरेंट्स, मॉम, डैड, भाई, बहन, सबके बारे में आप कुछ लिख सकते हो. सो वो आपकी इंस्पिरेशन होगी. तो सर ये इंस्पिरेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि जिस चीज को आप इंस्पिरेशन मान रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स भी सूझने चाहिए. दैट्स द रीजन इंस्पिरेशन क्या है वो चीज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यस, वो इंस्पिरेशन कोई इंसान हो सकता है. गाइज आपको पता होगा शायद, अगर आप मुंबई में रहते हैं, अगर जितने भी लोग यहाँ पर एडअप हुए और मुंबई में रहते हैं, तो आज सुबह को बारिश हुई, भले ही हल्की सी, लेकिन बारिश हुई. और आज का अगर तुम माहौल देखोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग माहौल बन गया है. सो यस, डेफिनेटली ये भी एक इंस्पिरेशन की वजह हो सकती है. दैट इज इवेंट्स, फेस्टिवल्स, करंट अफेयर. जैसे कि अगर बारिश हो रही है, आप एक चाय की चुस्की लगाते लगाते उस बारिश से प्रेरित होकर आप कुछ लिख सकते हो. यस, काफी रोमांटिक माहौल बन गया है. तो आपको ऑटोमेटिकली जो है, आपकी इंस्पिरेशन अगर बारिश है, अगर आप बहुत रोमांटिक फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रोमांटिक वर्ड्स आपको ज्यादा आएंगे. आपको एक लवेबल स्टोरी, एक बहुत पीसफुल स्टोरी आपको माइंड में आएगी और आप वैसे ही कविता या वैसे ही शायरी आप करना स्टार्ट करेंगे. सिमिलर वे में अगर कहीं करंट अफेयर्स में, जैसे कि हम सभी यहाँ पर जानते हैं, and this is very ironic but I'm very sorry, we are using a Chinese app right now, but we all know that हम सभी कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि
बॉर्डर पर क्या हो रहा है। तो जब भी हम हमारे सैनिकों के बारे में सोचते हैं तो हमारा खून खौल जाता है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है या उनके लिए हम कुछ लिखना चाहते हैं। सो दैट इज अ करंट अफेयर। अगर वो सैनिक या सोल्जर्स आपकी इंस्पिरेशन है तो आप उस हिसाब से वीर रस की कविताएं करते हैं, आप उस हिसाब से इंस्पिरेशनल या ब्रेवरी वाली कविताएं करते हैं। सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज इवेंट, फेस्टिवल्स एंड करंट अफेयर्स, कि वो आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है। इसके अलावा आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स नेचर के बारे में आप कभी भी लिख सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, अगर आप में से इसमें से कुछ भी आपकी इंस्पिरेशन नहीं है तो एक बेसिक इंस्पिरेशन यही होनी चाहिए, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब आपकी भावनाओं को फील करना, आप जो भी फील कर रहे हैं उसको बस कागज में उतारना है। सो बेसिकली अगर आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आपको गुस्सा है, उस चीज के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप अपने गुस्से को उस कागज पर उतारते हैं। अगर किसी की तारीफ करनी है तो आप तारीफ में कुछ अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज कर कर आप पेपर पे उतारते हैं, उसकी तारीफ में एक शेर लिख लेते हैं। सो दैट इज नथिंग बट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। बट इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, दैट इज वजह। आपको आपके आर्ट वर्क के लिए कोई ना कोई वजह होनी बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि वो वजह ही आपकी थीम डिसाइड करेगी। जैसे ही आपका जैसे जिस हिसाब से आपकी वजह होगी वही हिसाब से आपकी थीम भी होगी गाइस। सो यस, आपको एक्सप्रेस तो करना ही है खुद को, आपको एक वजह तो ढूंढनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डिसाइड करना है आपके आर्ट वर्क का एक थीम। यू हैव टू डिसाइड योर थीम। सो बेसिकली सर ये थीम क्या होता है या ये विषय क्या होता है? विषय मतलब बेसिकली आपका एक सोचने का तरीका, या आप कौन से वे में जाना चाहते हैं। दो पंक्तियां उसके लिए भी कही है, वो लोग कहीं अटकते हैं जो विषय से भटकते हैं। लाइफ में भी आपके पास अगर एक गोल नहीं है, आपके पास अगर एक थीम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं। सिमिलर वे में आपको आपकी कविता के लिए भी एक थीम पकड़ कर रखनी है। वो थीम कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो आपकी बेसिकली वो आपकी आपका जो प्रेरणा स्रोत होगा, जो आपकी इंस्पिरेशन होगी, उसी से आपकी जो थीम है उसका आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा पता चलेगा। सो यस, बेसिकली वो लोग कहीं अटकते हैं जो विषय से भटकते हैं। सो डेफिनेटली गाइज, आपको आपके विषय से नहीं भटकना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जब भी कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखना कोई और चीज चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। सो डेफिनेटली वैसा चीज हो सकता है। सो आपको ये चीज में भी ध्यान में रखनी है कि आपको आपके विषय से नहीं भटकना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सिलेक्ट योर थीम। आपका कविता किस थीम का होना चाहिए, सॉरी, आपकी कविता किस थीम की होनी चाहिए, ये सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी शेरो शायरी किस अंदाज से कहनी चाहिए, वो थीम सिलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। आपका अगर आप नाटक लिखना चाहते हैं, अगर आप स्किट लिखना चाहते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर थीम के बेस ही होनी चाहिए, उससे भटकनी नहीं चाहिए। उसके लिए आपको काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, आप थीम कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। नवरस करके कंसेप्ट है, अगर आपको पता होगा, तो नवरस में से कोई भी रस चुनिए और उसमें आप कोई भी कविता आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दोज। जैसे कि हास्य है, जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लेना चाहें, तो मुझे अगर देश के कुछ समस्याओं के बारे में बात करनी है, अगर मुझे देश के कुछ समस्याओं के बारे में बात करनी है, तो मैं या तो अग्रेसिव अप्रोच अपनाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा एंगर, दैट इज रुद्र वे में मैं लिखना चालू करूंगा, या तो फिर मैं हास्य व्यंग कविता भी कर सकता हूँ, दैट इज डार्क कॉमेडी, या सरकास्टिक वे में भी मैं कविता कर सकता हूँ। मेरा पर्पस या मेरा इंस्पिरेशन क्या है? मेरा इंस्पिरेशन है मुझे देश के सिचुएशन के बारे में मुझे कुछ लिखना है, और मेरी थीम क्या होगी? मेरी अगर थीम मैं हास्य व्यंग रख रहा हूँ या सरकास्टिक रख रहा हूँ, तो मैं मेरे वर्ड्स भी बहुत कॉमिक वर्ड्स सिलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट क्लियर रहेगा। मेरा पॉइंट वुड बी टू एक्चुअली हाईलाइट द प्रॉब्लम। सिमिलर वे में अगर आप एक बेसिकली अगर आप सपोज आपकी गर्लफ्रेंड के लिए कविता लिखना चाहते हैं या आपके बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, सो आप एंगर वाली थीम नहीं सिलेक्ट कर सकते। ऑफ कोर्स आपको डिलाइटफुल या फिर थोड़ी लाफ्टर वाली, दैट इज बेसिकली हास्य कविता करनी है, या अद्भुत वे में कविता करनी है, या एक प्यार भरी कविता करनी है। आप उसको एंगर या भयानक वाली चीजें तो आप नहीं बता सकते हो, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर इज, आपकी जैसी इंस्पिरेशन होगी आपकी थीम भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन इस थीम के अलावा भी आपको एक चीज ध्यान में जरूर रखनी है मेरे फ्रेंड्स, द थीम शुड सूट योर नेचर। जो थीम आप सिलेक्ट करते हो वो आपके अपने नेचर के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती सब लोग कर लेते हैं कि अगर आपका नेचर वैसा नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कविता शायद अच्छी लिख भी लेंगे, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पाएगा।
द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आप बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के, अगर आप बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हैं, तो आप हास्य या व्यंग या कुछ डिलाइटफुल, कुछ वंडरफुल आप लिख सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल लिख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी कुछ भड़काऊ या एंगर वाली चीजें नहीं लिख सकते अगर आपका बेसिक नेचर ही शांत है। लेकिन अगर आपका बेसिक नेचर ही बहुत अग्रेसिव है, तो आप शांत कविताएं ज्यादा अच्छी नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप कविता करना चाहे या आप शेरो शायरी करना चाहे, आप कुछ भी लिखना चाहे, वो लिखना आपके लिए है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू शुड राइट फॉर योर सेल्फ। तो आपका जैसा नेचर है उस हिसाब से अगर आप थीम सिलेक्ट करेंगे तो बहुत 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 ज्यादा बेटर होगा। What I'm trying to say you here is, आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा, काफी YouTube चैनल्स में देखी होंगी कि बहुत सारे लोग इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इन इंस्पिरेशनल वीडियोस में काफी सारे वीडियोस ऐसे जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इंस्पायर करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते। उसका मेजर रीजन यही होता है गाइस, कि जो लोग खुद अपनी लाइफ में वो चीज फॉलो नहीं करते, वो अगर कितना भी अच्छे वे में आपको वो थाली में परोस के देंगे, आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाओगे। सो सिमिलर वे में गाइस, जब भी आप कुछ लिखना चाहें, मेक श्योर आप आपके नेचर के अकॉर्डिंग लिखें। आपका जैसा स्वभाव है, आप वही थीम के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो बेहतर लिख पाएंगे। अगर किसी और के, एक बेसिक वही चीज है, खुद के कपड़े पहनोगे तो कंफर्टेबल लगोगे, किसी और के कपड़े पहनोगे शायद अच्छे लगोगे, लेकिन कंफर्टेबल फील जरा भी नहीं करोगे गाइस। सो दैट्स व्हाट बेसिकली द थीम डज फॉर योर पोएम और योर पर्टिकुलर पोएट्री और स्किट और एनीथिंग। इसके अलावा गाइस, आपको एक चीज जो पहले से हम लोग कह रहे हैं, यू हैव टू फोकस। आपको लिखने के दौरान भटकना नहीं है। अगर कहीं पर आपका मन भटक रहा है तो तुरंत तुरंत लिखना बंद कर दीजिए। ये मेरा सजेशन है गाइज, फिर आपके ऊपर है। अगर आप भटक रहे हैं तो आप लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लिखना चाहते हैं कुछ और, लेकिन लिखते लिखते आपके ख्याल किसी और जगह पे जा रहा है, तो आप वही लिखना चाहते हैं, तो आप एक्चुअली में अपने इंस्पिरेशन से, अपनी थीम से भटक जाएंगे। और जो एंड प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो लास्ट में जो आपके पास जो पोएट्री बचेगी, वो पोएट्री या वो कविता या वो शेर या जो भी आप लिखना चाहे, वो चीज आपको खुद को ही पसंद नहीं आएगी। बिकॉज उसका जो स्टार्ट है वो किसी और थीम के ऊपर बेस्ड होगा, वो किसी और चीज के ऊपर बेस्ड होगा, और एंड होते होते वो कोई और चीज बन जाएगी। सो डेफिनेटली गाइज, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं हमेशा। सो डेफिनेटली while रीडिंग ऑल्सो, while राइटिंग ऑल्सो, यू शुड बी कंसिस्टेंट। आपको आपकी जो कविता है या जो आपका जो भी आर्टवर्क है, वॉट एवर आर्टवर्क यू डू, यू शुड बी फोकस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू, और उस हिसाब से ही आपको लिखना चालू करना है। अगर कहीं पर भी आप रास्ते में भटक जाते हैं लिखते लिखते, जाहिर सी बात है काफी सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे लिखते लिखते भी, तो डेफिनेटली आपको तभी वो चीज लिखनी बंद कर देनी है और उन थॉट्स को कहीं और, कोई और पेपर पे लिख दीजिए, सो दैट वो थॉट्स भी आपके एक बार के लिए निकल जाए। सो यस, आपको सिलेक्शन ऑफ थीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वॉज योर नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर थिंकिंग एंड इंस्पिरेशन, दैट आपकी थीम इस तरह से होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन गाइस। सब कुछ हो जाने के बाद अब हम सीखते हैं कि एक्चुअली में लिखना कैसा है। मतलब अभी तक जितना भी आपने समझा गाइस, दैट इज थिंकिंग, आपको कैसे सोचना है, आपकी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए या आपका थीम क्या होना चाहिए, वो सारे 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 जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। वो कॉमन है मतलब वो आप कुछ भी लिखने की कोशिश कीजिए, वो चीजें तो बहुत कॉमन है। अब हम लोग लिखने के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली अगर आपको पोएम्स लिखनी है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, अगर आपको शायरी करनी है तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, और अगर आप स्किट लिखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सो लेट्स बिगिन विद दैट गाइस। लिखना, दैट इज राइटिंग। सो ये एक चीज बहुत ज्यादा अगेन पीयूष मिश्रा जी की लिखी हुई है, जब से लिखना सीख गया हूं बोलने की ख्वाहिश नहीं रही है। सो बेसिकली आप जैसे ही, आपको भी मजा आएगा अगर लिखते लिखते, तो सच में आपको मन करेगा कि अरे मैं बोलूं कम, मैं लिखूं ज्यादा। सो दैट्स हाउ इट गोज गाइस। फॉर पोएम्स, विल टॉक अबाउट पोएम्स फर्स्ट। हम पोएम्स के बारे में पहले बात करेंगे। सो जिन जिन लोगों को पोएट्री करनी है, अच्छा बिफोर वी इवन बिगिन विद दिस सेक्शन, यहाँ पर मैं अगेन वही बताना चाहता हूँ गाइज कि मैं ग्रामर की या वोकैबुलरी की या लिटरेचर की उन सब की बातों में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो वेबिनार हम लोग ने जो अरेंज किया है, दिस इज फॉर दोज पीपल जो बिगनर्स है, जिनको कविताएं करनी है, जिनको शेरो शायरी करनी है, जिनको अपने स्टेटस पे कोट्स डालने हैं, उनके पास विचार भी है, बस लिख नहीं पा रहे।
तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए हम ग्रामर के जंजीरों में हम नहीं बांध सकते उनको, हम उनको थोड़ा सा आजाद रखेंगे तो ही बेटर होगा. सो यस, यहाँ पर मैं ग्रामर की उन सब की बातें नहीं करूंगा गाइज. सो लेट्स सी, अगर आपको पोएम लिखनी है तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ड्स, शब्द. आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, आपकी पोएम की क्वालिटी भी उस हिसाब से इंप्रूव करेगी गाइस. सर आप कहना क्या चाहते हैं हमको समझा नहीं. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर इज, अगेन अ वेरी फेमस एग्जांपल. अगर आप आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी पेरेंट्स का, मॉम का, या मे बी आपके बॉयफ्रेंड की आंखों की तारीफ करना चाहते हैं, आंखों की तारीफ करना चाहते हैं, तो आप आंखों की जगह पर निगाहें या नजरें ऐसा वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. सिमिलर वे में अगर आप किसी के बालों की तारीफ करना चाहते हैं तो बालों की जगह पे जुल्फे या केश ऐसा कुछ वर्ड्स यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा. सो बेसिकली द वर्ड्स दैट यू यूज इन योर पोएट्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब बहुत सारे लोगों को है ना एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम जब भी कोई वर्ड्स देखते हैं तो हमको लैंग्वेज कौन सी रखनी चाहिए. मतलब हम जिस लैंग्वेज में पोएट्री रख रहे हैं क्या उसी लैंग्वेज में हम लोगों को वर्ड्स ढूंढने या कोई और लैंग्वेज के भी सीख सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केश जो है वो हिंदी वर्ड है और जुल्फे जो वर्ड है वो उर्दू का शब्द है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैं यहाँ पर उन लोगों की भी बात, मैं वो लैंग्वेज के झमेले में भी आपको भी नहीं फंसाना चाहता हूँ. द बेसिक रीजन इज एक्सप्रेसिंग डज नॉट और expressing should not be boundaried by languages. आपको लैंग्वेजेस के झमेले में नहीं पड़ना है. तो आप लैंग्वेज भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इन बिटवीन भी आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो गाइस. अगर आप कोई हिंदी में कविता कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश का एक वर्ड यहाँ पर आना बहुत जरूरी है, तो आप बिंदास डालिए, आप अपने आप को बिंदास एक्सप्रेस कीजिए. धीरे धीरे आप उस लैंग्वेज के बारे में भी सीखना स्टार्ट कर देंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ योर पोएम. अगर आप एक भाषा में लिखना चाहते हैं तो वही भाषा में लिखिए. अगर आप मल्टीपल भाषा यूज करना चाहते हैं तो मल्टीपल भाषा यूज कीजिए. दे ऑल आर कंसिडर्ड टू बी पोएम्स इन टर्म्स ऑफ द रीडर्स. जो भी पढ़ रहे हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छी कविताएं जरूर कर रहे हैं गाइस. सो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. अब सबसे ज्यादा जब भी पोएम लिखने बैठते हैं या मैं भी कभी पोएम लिखने बैठता हूं तो मुझे एक बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम सताता है और वो प्रॉब्लम है राइमिंग स्कीम. वो प्रॉब्लम है राइमिंग स्कीम गाइस. मतलब यार एक वर्ड तो मुझे अच्छा मिल रहा है लेकिन उसके राइमिंग में दूसरा वर्ड मुझे सूझ नहीं रहा है यार, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है. तो कैसे करना चाहिए गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट इज जब आप राइमिंग स्कीम चाहते हैं, जैसे कि बचपन में हम लोगों ने ये बहुत फेमस चीज है जो हम लोग ने पढ़ी होगी, आई एम अ टी पॉट शॉर्ट एंड दिस इज माई हैंडल एंड दिस इज माई. ये दोनों वर्ड्स को आप कैसे वे में आई मीन आप कैसे वे में सुनते हो या कैसे वे में आप बोलते हो, इस चीज को राइमिंग स्कीम कहते हैं. आप हमेशा देखोगे कि जब भी कोई शायर शायरी करता है या कोई पोएट पोएट्री करता है, मेजॉरिटी ऑफ द पोएम्स या मेजॉरिटी ऑफ द शायरीज जो है उनके एंडिंग के वर्ड्स बहुत सिमिलर होते हैं. उसी चीज को तो राइमिंग कहते हैं, राइट? लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमको राइमिंग स्कीम ही नहीं मिलती है या हमको राइमिंग वर्ड्स ही नहीं मिलते. तो क्या करना चाहिए गाइस? व्हाट इज द बेसिक ट्रिक? अच्छा, अगेन दिस इज फॉर ओनली दोज हु वांट टू राइट. जो बिगनर्स है उनके लिए एक ट्रिक बताना चाहता हूँ गाइस. जब भी आप कविता करना चाहे, दिस इज वेयर आई स्टार्टेड, सो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ गाइस. जब भी मैं हिंदी में कविता करता हूँ या व्हेनेवर आई एम डूइंग अ पोएट्री इन इंग्लिश, आई कीप दोज वर्ब्स, एक्शंस जिसको हम कहते हैं, वर्ब्स जिनको हम कहते हैं, उनको मैं लास्ट में रखता हूँ. अगर मैं उनको लास्ट में रखता हूं तो बहुत अच्छे से मुझे और राइमिंग वर्ड्स मिल जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? जैसे अगर मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि मैं लिखता हूं, तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि मैं लिखता हूं, या मैं कहीं और दिखता हूं, या मैं किसी से लिपटता हूं. कहने का मतलब आप अगर वर्ब्स को एंड में रखेंगे, आप अगर वर्ब्स होती है, जो एक्शंस होती है, उन सब चीजों को आप एंड में रखेंगे तो उसके ऊपर आपको ज्यादा राइमिंग स्कीम मिलेगी, उसके ऊपर आपको ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे. और इसमें आपको हेल्प लेनी है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ, दैट इज मिस्टर गूगल. आपको गूगल का सहारा भी लेना है. गाइज वी आर इन अ वेरी 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 गुड एनवायरमेंट राइट नाउ, जहां पर हमारे पास इंटरनेट इज सच अ गुड सर्विस. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑन इंटरनेट जो आपको आपके वर्ड का राइमिंग वर्ड्स हाथों हाथ तैयार देते हैं.
इसमें आपको कुछ झंझट मारी नहीं करना है, बस गूगल पर जाकर उस वर्ड को लिखना है और कहना है इसके लिए मुझे राइमिंग वर्ड्स दीजिए। देयर आर एन नंबर ऑफ साइट्स जो आपको राइमिंग वर्ड्स भी देते हैं, और बस फिर क्या करना है, उन राइमिंग वर्ड्स को आप एक पेपर पर लिख लीजिए। दिस इज व्हाट आई डू। मैं वो सारे राइमिंग वर्ड्स को एक पेपर पर लिख लेता हूँ साइड में, और मेरे जो कविता के विचार है उनके हिसाब से मैं वहां से जो वर्ड्स है वो निकालते रहता हूं और वहां पे प्लेसमेंट करते रहता हूं। सो दैट्स हाउ आई यूज द राइमिंग स्कीम। लेकिन सर कविता में सिर्फ राइमिंग स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है, कविता के अंदर एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उसका प्रेजेंटेशन एंड उसका मीटर। गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर इज प्रेजेंटेशन एंड मीटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम मतलब प्रेजेंटेशन क्या है और ये मीटर क्या है, काफी लोगों को पता नहीं होगा। प्रेजेंटेशन का मीनिंग है आप आपकी कविता जो है वो कैसे वे में प्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो दो लाइंस की ऐसे 3-4 पैराग्राफ लिखते हैं, वो एक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन हो गया। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-4 लाइन के पैराग्राफ्स लिखते हैं और ऐसे 3-4 पैराग्राफ लिखते हैं, वो एक स्टाइल हो गया। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 लाइन की कविताएं करते हैं, वो भी एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल हो गया। सो आप जैसे वे में प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, आपके राइमिंग स्कीम भी उस हिसाब से हो तो बेटर है। जैसे अगर आप सिर्फ 4 लाइन लिखना चाहते हैं तो आपकी सेकेंड लाइन और आपकी फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड अगर मैच होता है तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि चारों लाइन के लास्ट वर्ड्स मैच होने चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है उस हिसाब से आपको राइमिंग स्कीम डिसाइड करनी है। एंड अगेन मीटर का क्या मीनिंग होता है? मीटर मतलब बीट्स। बेसिकली जब आप कोई भी चीज लिखें, मैं आगे उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं गाइस, लेकिन जब भी आप चीज कोई भी लिखना चाहे तो व्हेनेवर यू राइट समथिंग, मेक श्योर यू रीड इट। आप उस चीज को बार बार लगातार पढ़ते रहें, और जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको उसकी बीट्स भी समझ में आएगी कि आपकी कविता की पहली लाइन कितने सेकंड्स में खत्म हो रही है और आपकी कविता की दूसरी लाइन कितने सेकंड्स में खत्म हो रही है। अगर आप उन दोनों को राइम करना चाहते हैं, अगर आप उसमें कविता लिखना चाहते हैं, तो मेक श्योर आपका मीटर परफेक्ट हो। मतलब आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी, जो सेकेंड लाइन होगी, जो थर्ड लाइन होगी, या जितनी भी लाइंस होंगी, आप कविता में जितनी भी लाइंस लिखना चाहते हैं, उन सबको जब आप बोलेंगे तब आपका मीटर एक जैसा होना चाहिए। मतलब आप हर एक लाइन को एक्चुअली में बीट वाइज देखेंगे। अरे बाप रे, कभी सोचा नहीं था ना कि कविता में इतना डेप्थ से लिखा जाता है। लेकिन गाइज यही डिफरेंस होता है एक अच्छे कवि में और एक कवि में। सो जो अच्छा कवि होता है या जो अच्छी कविताएं कर सकता है, वो एक अच्छे मीटर में भी जाता है, वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल्स भी लेकर आता है। सो दैट्स हाउ वी गो गाइज, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंटेशन एंड दैट इज नथिंग बट मीटर। इन सब के अलावा एक बहुत ज्यादा बेसिक टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास जब भी अगर आप सपोज आप कवि होना चाहते हैं या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मेक श्योर आप आपके पास एक पेन या पेपर हैंडी रखें हमेशा। मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो आपके पास आपका सेलफोन जरूर होगा, और जैसे ही आपको कोई भी ख्याल आता है, मेक श्योर कि आप उस चीज को लिखते रहें। क्योंकि आप लिखते रहेंगे, जितना आप लिखेंगे, आप पहली बार लिखेंगे काटेंगे, दूसरी बार लिखेंगे उसको काटेंगे, तीसरी बार लिखेंगे काटेंगे, आप हमेशा उस चीज को आप बार बार जब जितनी बार आप लिखते जाएंगे, आपकी उतनी ही कविता पॉलिश होती जाएगी। सो दैट्स हाउ इट गोज गाइस। सो दीज आर 4 बेसिक टिप्स जो आपको पोएम के लिए आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू वन मोर सेक्शन, दैट इज फॉर शायरी। अगर किसी को इन चीज का एक स्क्रीनशॉट लेना है तो गाइज आप प्लीज ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। इट इज कंप्लीटली ओके फॉर मी टू टेक अप स्क्रीनशॉट्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम शायरियों के बारे में बात करते हैं, आजकल आप सभी ने देखा होगा गाइस कि बहुत अच्छी अच्छी शायर, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे ही लॉकडाउन हुआ है हर कोई शायर बन गया। मतलब वो जो एक लाइन थी जो ऋषि कपूर जी जो अभी नहीं रहे हमारे बीच, सो आई डू दैट। ओके, सो जो ऋषि कपूर जी हमारे साथ नहीं है, ओके ओके, तो उनकी एक मूवी आई थी, वो भी बहुत फेमस मूवी थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक दो लाइंस पढ़ी थी, मतलब वो दो जो लाइन थी वो चीज हम लोगों ने सीखी थी। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। सो यस, वो लाइंस के बेसिस पर, या शायर, एक शायर जो होता है वो कभी भी आपके अंदर पैदा हो सकता है गाइस। तो अगर आप में एक शायर है, या आप चाहते हैं कि आपके अंदर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर बसा हुआ है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
सो यस, बेसिकली सबसे पहली चीज, बेसिक शायरी कैसे की जाती है। आपने देखा होगा कि जो शायरी होती है ना गाइज, वो शायरी हमेशा 2 लाइंस की होती है। तो उसमें जो फर्स्ट लाइन होती है वो बहुत जनरल होती है, और जो सेकंड लाइन होती है उसमें बहुत कुछ डीप या पावरफुल मीनिंग छुपा होता है। तो लोग जनरली जब ये शायरी करते हैं तो उसका एक बहुत ज्यादा कॉमन जो प्रकार है, जो कॉमन टाइप है, वो ऐसा कुछ है कि जिसमें जो फर्स्ट लाइन आप लिखे वो बहुत जनरल होनी चाहिए, और जो सेकंड लाइन आप लिखे उसमें कुछ डीप मीनिंग होनी चाहिए। जैसे कि एक शेर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं यहाँ पर। शुक्रिया कर उनका जिन्होंने बीच रास्ते छोड़ दिया, शुक्रिया कर उनका जिन्होंने बीच रास्ते छोड़ दिया, आज उन्हीं की वजह से अकेले चलने की हिम्मत हुई है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो पहली लाइन है, शुक्रिया कर उनका जिन्होंने बीच रास्ते छोड़ दिया, ये एक बहुत ऑर्डिनरी लाइन है। लेकिन जब आप सेकंड लाइन में देखोगे तो उसमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग छुपा हुआ है गाइस, एक बहुत पावरफुल थिंग छुपी हुई है, कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना। सो कहीं ना कहीं वो चीज, वो आत्मनिर्भर बनने की वो एक पर्टिकुलर लाइन है। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि पहली जो लाइन है वो आपको एकदम कॉमन या जनरल रखेंगे तो भी चलेगा, एंड जो सेकंड लाइन है उसके अंदर आप बहुत डीप एंड पावरफुल मीनिंग वाली कोई लाइन आप रखेंगे तो आपकी शायरी बेटर होगी। अगर आपको ऐसी कोई शायरी करनी है तो आपको एक्चुअली में लिखने के टाइम पे सेकंड लाइन पहले सोचनी पड़ेगी। यू विल हैव टू थिंक द सेकंड लाइन फर्स्ट। आपको पीछे वाली लाइन जो है वो आपको पहले समझनी पड़ेगी, वो पहले जाननी पड़ेगी, और जो पहले वाली जो लाइन है वो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो यस, दिस इज वन वेरी बेसिक थिंग। कुछ शायर ऐसे होते हैं जो ये पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं करते, कुछ शायर ऐसे होते हैं जो कुछ अलग तरीके की शायरी करते हैं। जैसे कि नो कोरिलेशन बिटवीन लाइंस कैन ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट। मतलब आपके किसी भी लाइन में कोई कोरिलेशन नहीं है, आपकी पहली लाइन और दूसरी लाइन शायद एक दूसरे से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी अगर साथ में पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि ये एक शायरी थी, माना एक दिन तुम सिकंदर बन जाओगे, माना एक दिन तुम सिकंदर बन जाओगे, अरे आज 2 पल रो लो तुम हल्के हो जाओगे, आज 2 पल रो लो तुम हल्के हो जाओगे। इसमें दोनों लाइन में कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है गाइस, कोई भी को रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों लाइन को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत डीप इंपैक्ट छोड़कर जाता है वो। सो यस, ये भी एक टाइप ऑफ शायरी है जहां पर आपको पहली और दूसरी लाइन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप एक बहुत पावरफुल इंपैक्ट छोड़कर जाते हैं। सो यस, जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों लाइंस में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, विदाउट रिलेशन भी अगर आप कुछ मीनिंग बाहर निकाल पाते हैं तो यस, वो शायरी भी सक्सेसफुल होती है। एंड द लास्ट एंड माय पर्सनल फेवरेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शायरी का जो स्टार्ट है, अपनी शायरी की जो स्टार्ट है, वो बहुत 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 ज्यादा पावरफुल वर्ड्स और अग्रेसिव वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। मतलब वो चाहते ये है, वो शायद यही कहना चाहते हैं हमेशा कि आप जो स्टार्ट करें वो इतना इम्पैक्टफुल स्टार्ट हो कि शायद जो भी आपका रीडर है, जो पढ़ रहा है, वो आपकी पूरी शायरी 2 बार 3 बार पढ़े। मतलब आप पहले ही वर्ड से उसको इतना अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो आपकी शायरी पूरी तरह से पढ़े। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उन बेवकूफों को आजाद करना मुश्किल है, उन बेवकूफों को आजाद करना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करने लगे हैं। ये देखिए, ये बहुत 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 ज्यादा एक पावरफुल वर्ड से उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे बेवकूफ। सोचिए, अगर आप राह चलते कहीं पर चल रहे हैं और कोई इंसान आपको बेवकूफ कह दे, आपका फर्स्ट रिएक्शन रहेगा क्या, इसने मुझे बेवकूफ कहा कैसे? तो आपका ध्यान उस कविता की और उस शायरी की ओर खींचा चला जाएगा, और वही चीज यहाँ पर कुछ शायर करने की कोशिश करते हैं। वो जब भी कुछ लिखते हैं, वो जब भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो शुरुआत ही ऐसे अग्रेसिव और पावरफुल वर्ड से करते हैं कि आप उस शायरी की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएं, और उसी हिसाब से फिर वो शायरी को ढालते हैं। जैसे यहाँ पर उन बेवकूफों को, जो बेवकूफों को वर्ड यूज किया गया है, उसकी वजह से आप दोबारा ये शायरी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप शायरी को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत गहरी बात कर गए हैं। सो यस, शायरी का ये 3 पर्टिकुलर चीज था। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आप अगर शायरी करना चाहते हैं तो आप बिना किसी मतलब के, जैसे कि हम पहले भी कह रहे हैं, बिना किसी वजह से, बिना किसी इंस्पिरेशन के आप अगर शायरी करेंगे तो शायरी का कुछ मतलब नहीं बनेगा, या वो लोगों को नहीं, आपको खुद को भी पसंद नहीं आएगी।
सो हमेशा आप शायरी करने के टाइम पर कुछ एक पर्पस, कुछ एक मकसद लेकर जरूर चले, तो आपकी शायरी और ज्यादा निखर के आएगी, और आप उस मकसद को टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो उस हिसाब से आपकी शायरी और ज्यादा निखरेगी। तो ये तो थी बात पोएम्स की और शायरी की। अब मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ जिनको लाइफ में स्किट्स लिखने का शौक है, या कभी आप अगर बेसिकली आप कहीं पर सपोज आपके ऑफिस में भी जो आपके एचआरस होते हैं वो भी कहते हैं कि अरे यार कोई स्किट कर लो। अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज स्टूडेंट्स भी ऐसा कुछ कहते हैं कि अरे यार प्रेजेंटेशन के लिए कोई स्किट परफॉर्म करना है। और हम हमेशा, या कुछ और नहीं तो फैमिली के फंक्शंस में या किसी और चीज में आप कहते हैं कि यू नो बेसिकली आपको स्किट वगैरह परफॉर्म करना है तो कुछ लिख के दे दो यार। और तभी हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं कि यार कोई एक राइटर मिल जाए जिसके पास हम कुछ लिखवा पाए। वेल गाइस, स्किट लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्किट जरूर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्किट अच्छी लिखें, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने सीखे हैं। वो पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, विच इज वेरी बेसिक टू राइट अ स्किट। अगर आप ये पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं आप आपके ऑफिस में, आपकी कॉलेज में, या आपकी फैमिली में, या कोई फंक्शन में छोटी सी स्किट परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू टेल योर स्टोरी। आपको पहले तो एक स्टोरी सोचनी है, आपको एक थीम सोचनी है, आपको एक इंस्पिरेशन सोचनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना ये है कि ये कहानी कितने किरदार कहेंगे, ये कहानी कितने लोग कहेंगे। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक स्किट नहीं है, ऑफ कोर्स ये एक सीरियल है, लेकिन वो भी अगर हम स्किट के फॉर्मेट में देखने जाएंगे तो उसकी कहानी कहने के लिए उनके पास काफी सारे लोग हैं, करेक्ट। लेकिन एक्चुअली में वो अपनी कहानी एक पर्टिकुलर पर्सन के फैमिली से दर्शाते हैं, जैसे जेठालाल गड़ा, चंपकलाल गड़ा, टप्पू एंड दयाबिन। ये उस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। एंड उसके अलावा एक और किरदार है, वो है तारक मेहता खुद। तो ये जो कहानी है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कहानी है, वो इन 5 कैरेक्टर्स की कहानी है। तो उन 5 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन 5 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जितने भी कैरेक्टर्स, जैसे कि वो सोडी है, या वो एक में वो सेक्रेटरी मिस्टर भिड़े है, या फिर अपने गोली बाजी है, उन सब लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उस कहानी को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, उस कहानी को और ज्यादा निखारने के लिए होता है। सो यस, जब भी आप कुछ लिखना चाहें तो डेफिनेटली आपको सोचना ये पड़ेगा कि आपके कितने कैरेक्टर्स होंगे। अच्छा, आपने कैरेक्टर्स तो सोच लिए कि ये कैरेक्टर्स होंगे, अब क्या करना है? Assign each character a human nature and write dialogues as if you, that is you are a writer, are that character. मतलब अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, लेट्स टेक अगेन दैट एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आप राइटर है, तो आप अगर जेठालाल के कोई डायलॉग्स लिख रहे हैं तो जेठालाल को आपने एक नेचर दे दिया, तो आपको उसके डायलॉग उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे अगर जेठालाल और दया के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है, तो जेठालाल के अगर डायलॉग्स लिखने आपको, तो ए डोबी, अरे चाय लेकर आने भाई, ये करके आना, तो दैट्स हाउ यू नीड टू राइट द डायलॉग्स। लेकिन आप जब ये दया के बारे में लिखना चाहते हो तो दया का नेचर कुछ इस हिसाब से, तो वो उस हिसाब से अपने डायलॉग्स बोलेगी। जब देखो तभी मुझे डांटते रहते हो, ऐसा कुछ, ये द वे शी स्पीक्स, राइट। जब देखो तभी डांटते रहते हो, पूरा दिन चाय पीते रहते हो, बिस्किट खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। सो कहने का मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर इज, आप लिखेंगे, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप उन किरदारों को, उन कैरेक्टर्स को जीना भी स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप उन कैरेक्टर्स को जीना स्टार्ट करेंगे तो उनके डायलॉग्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे वे में आएंगे। मतलब जितने किरदार आपकी कहानी में है, उतने किरदार आपको आपकी असल जिंदगी में भी जानने चाहिए। और ये बहुत ज्यादा, यस, हे माँ माता जी, ऑफ कोर्स यस, दैट्स अ वेरी फेमस थिंग। तो कहने का मतलब क्या है, एक लेखक जो है वो अपने अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स छुपा लेता है, और तभी वो एक्चुअली में हर एक कैरेक्टर को एक इंडिविजुअलिटी देखता है। जैसे कि तारक मेहता के पूरे स्टार कास्ट में हर एक पर्सन का एक अलग 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 कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर्स उनको वो राइटर्स देते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोज गाइस। सो कोई भी मूवी वगैरह होगी तो उसमें भी आपने देखा रहेगा, जैसे बाहुबली, उसमें भल्लाल देव का कैरेक्टर अलग है, बाहुबली का कैरेक्टर अलग है, देव सेना का कैरेक्टर अलग है, कटप्पा का कैरेक्टर अलग है। जब लिखने बैठे होंगे तब वो जो राइटर्स होंगे वो हर किरदार को लिखने से पहले उस किरदार को जीते हैं। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। अच्छा, जब भी आप लिखने बैठते हो तो ऑफकोर्स आपके डायलॉग्स, आपके वर्ड्स जो है वो बेसिकली आप जब लिखने बैठते हो तब थीम बेस्ड होने चाहिए। वो थीम बेस्ड होने चाहिए, मतलब आपके वो डायलॉग्स आपके उस थीम के, जिस थीम में आप लिखना चाहते हैं। जैसे सपोज काफी सारे कॉलेजेस में एनवायरमेंट रिलेटेड स्किट्स करवाते हैं,
कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ स्किट करके दो, तो आपने कुछ 4 फ्रेंड्स की कहानी लिखी कि 4 फ्रेंड्स है जिसमें से 2 फ्रेंड्स जो है वो एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे और 2 फ्रेंड्स होंगे जो उनको ज्ञान देंगे कि भाई गंदा नहीं करना चाहिए। तो वो आपने कैरेक्टर सोच लिए। अब उन कैरेक्टर्स को आपको एक नेचर देना है कि एक पर्टिकुलर सपोज गर्ल होगी, एक पर्टिकुलर बॉय होगा, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा। सो उस हिसाब से कैरेक्टर्स के हिसाब से अभी आप जब डायलॉग्स लिखना चाहे तो मेक श्योर कि आप आपकी जो थीम है दैट इज एनवायरनमेंट, आपके डायलॉग्स उसी 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 फॉर्मेट में या उसी लेंथ में जाने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे इमेच्योर राइटर्स जो है वो नहीं जान पाते, नाटक बड़ा होना जरूरी नहीं है, नाटक छोटा होना चाहिए। दैट इज शॉर्ट लाइन्स आर बेटर। आप जितनी कम लाइन्स लिखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। लेट द इमोशन फ्लोज थ्रू एक्सप्रेशन एंड नॉट वर्ड। इमोशंस को एक्सप्रेशंस के थ्रू फ्लो होने दीजिए, शब्दों के द्वारा नहीं। और अवॉइड डायलॉग्स विच डिपिक्ट एक्शंस। मतलब जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में या जहां पर हम लोग कभी जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जब भी कोई स्किट परफॉर्म हो रहा होता है तो जो कैरेक्टर होता है ना वो अपनी एक्शंस भी बताता है। जैसे अगर दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं बैठ के और कोई एक कैरेक्टर खड़ा होकर अंदर पानी पीने जाना चाहता है तो वो ऐसा कहकर जाता है, रुको मैं अभी खड़ा होकर पानी पी के वापस आता हूं। जरूरी नहीं है। स्किट्स में आप ये सारी चीजों की लिबर्टी ऐसे वे में ले सकते हैं कि आप सीधा उठ के गए, पानी का ग्लास लिया और बाहर आ गए। कहने का मतलब आप आपके डायलॉग्स को बढ़ाने की कोशिश जरा भी ना करें। आप उसको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना आप शॉर्ट लिखें, क्योंकि आप जितने बड़े बड़े डायलॉग्स लिखेंगे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपको ये किसी से परफॉर्म भी करवाना है, आपको किसी को ये स्किट के डायलॉग्स देने भी है। तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा या वो बंदी या जो वॉट एवर द कैरेक्टर, द पर्सन इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर इज एक्चुअली गोना रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स। वो सारी जो चीजें हैं या वो जो सारे डायलॉग्स हैं वो याद रखेंगे, वो जरूरी नहीं है। सो यस, डेफिनेटली आपको आपकी लाइंस जो है वो शॉर्टन अप करके लिखनी है, बहुत स्वीट वे में आपको आपकी बातें लिखनी है। सो दैट वे में आपको लिखना है। यस, मेरे एक फ्रेंड है मिहिर पटेल, उन्होंने बहुत अच्छी चीज एक लिखी है चैट बॉक्स पे कि फिर लोग फंबल मारते हैं। स्किट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फंबल। मतलब बहुत बार आपने भी देखा होगा, कभी आप ड्रामा वगैरह देखने गए, आप खुद आपने कभी ड्रामा किया होगा, डायलॉग्स बोलते बोलते आप भूल जाते हैं। और उसका एक मेजर रीजन यही है कि डायलॉग बहुत बड़ा होता है। सो आप अगर उस कैरेक्टर को जी रहे हैं और अगर आपके पास डायलॉग छोटा है तो आप आसानी से बोल सकते हैं, उसमें आप कभी भी उसको फंबल नहीं करेंगे, उसको आप कभी भी उसको मिसलीड नहीं करेंगे, ड्रामा को कहीं पर आप छोड़ नहीं देंगे। सो दैट्स द रीजन यू हैव टू राइट शॉर्ट लाइंस। जितनी शॉर्ट लाइंस लिखेंगे उतनी बेटर रहेगी। एंड एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई भी नाटक लिखें तो यू शुड हैव अ वेरी गुड स्टार्ट, एक होल्डिंग मिडिल और एक अनफॉरगेटेबल एंड। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके बीच में, मतलब नाटक अगर 10 मिनट का है तो कहीं ना कहीं 5 या 6 मिनट के अंतराल पर, दैट इज 5th और द 6th मिनट ऑफ योर प्ले, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो ऑडियंस को एकदम वंडर से भर दे, जो कुछ एक बहुत ज्यादा एक कैची एक पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए। तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो मिडिल पार्ट है वो बहुत होल्डिंग होना चाहिए। बोरिंग मत कीजिए, आपकी स्किट को बोरिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लास्ट का जो आपका 2 मिनट होता है जिसको हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं, वो क्लाइमैक्स को आप अनफॉरगेटेबल बनाइए, कुछ नए वे में प्रेजेंट कीजिए, कुछ ऐसे वे में लिखिए, कुछ ट्विस्ट लेकर आइए, कुछ ऐसे वे में लेकर आइए कि वो चीज लोगों के जहन में बैठ जाए, वो चीज लोगों को याद रह जाए। So yes, whenever you write any kind of skit or any kind of drama, we always focus on a very good start, a holding middle and an unforgettable end. कुछ अलग वे में आपको एंड करना है, कुछ अलग वे में स्टार्ट करना है, और जो बीच की आपकी स्टोरी होगी उसको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपने काफी दफा कितनी सारी फिल्म्स में आपने देखा होगा कि आपको शुरुआत बहुत अच्छी लगती है लेकिन इंटरवल आते आते आप सो जाते हैं, फिर इंटरवल में पॉपकॉर्न वगैरह खा लिए, वॉशरूम वगैरह जाके आ गए, तो फिर थोड़ा थोड़ा स्टोरी में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है लेकिन उतना ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन अगर उस फिल्म का एंड बहुत अच्छा हो, अगर उस फिल्म का एंड बहुत ही अच्छा हो, तो आप बाहर आकर लोगों से कहेंगे अरे क्या मूवी थी। करेक्ट? जैसे आप अगर कोई भी कॉमेडी मूवी देखेंगे, कोई भी कॉमेडी मूवी के एंड के 10 मिनट एक बहुत बड़ा रैंडम सर्कस होता है। मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी है फिर हेरा फेरी। आई एम श्योर काफी सारे लोगों की फिर हेरा फेरी जो है वो बहुत अच्छी मूवी, आपको बहुत अच्छा एक एक
बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लगेगी। अगर वो मूवी आपने देखी है तो आपको पता होगा कि उसका जो एंड है वो बहुत अनफॉरगेटेबल था। हम आज भी उसके मीम्स जो है वो देखते रहते हैं। वो जब सर्कस में जाते हैं, वो सर्कस में जब वो सब कलाकारियां करते हैं, वो इतना अनफॉरगेटेबल एंड रख दिया कि आपको एक्चुअली में वो अगर एक टाइम के लिए आपको पूछे कि बेसिकली ये आई मीन फिर हेरा फेरी का स्टोरी क्या था, तो शायद आपको वो स्टोरी एक साथ बोलने के लिए काफी दिक्कत होगी, क्योंकि शायद उसके बीच में कहीं पर आप खो गए। लेकिन आपको उसका एंड बहुत अच्छे से याद है। उसका स्टार्ट जब वो राजू सब लोगों से पैसे लेता है, जब वो 50 लाख रुपए लेता है, या जब भी वो राजपाल यादव से जब भी वो पैसे लेता है कि एक का डबल करना है, वो पार्ट आपको याद है। मतलब अच्छा स्टार्ट आपको याद है, अच्छा एंड आपको याद है, लेकिन मिडल का कहीं आप खो गए। लेकिन फिर भी आपको ये पर्टिकुलर मूवी बहुत ज्यादा पसंद है। उसका एक ही रीजन है, यू हैव एन अनफॉरगेटेबल एंड। उसका एंड बहुत ज्यादा कॉमेडी था। सो यस, जब भी आप चिल्ला चिल्ला के मैं सबको स्कीम बता दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन यस, जब भी आपको स्क्रिप्ट लिखे तो आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके आपके बेसिकली जो जो आपका होल्ड है, जो मिडल है, वो एक होल्डिंग होना चाहिए। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को पकड़ के रखे, और एक अनफॉरगेटेबल एंड भी होना चाहिए गाइस। सो दैट्स हाउ यू नीड टू राइट स्किट्स। अब यहाँ पर टेक्निकली अपने जो सारे चीजें हैं वो खत्म होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं एज अ पर्सन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज, आप कुछ भी लिखिए गाइस, वेदर यू राइट अ पोयम, वेदर यू राइट अ शायरी, वेदर यू राइट एन एसे, वेदर आपको कुछ और नहीं, किसी को बस थैंक यू का एक लेटर लिखना है, एक पोएटिक वे में लिखना है, या कुछ भी आप लिख रहे हैं, आपको किसी को प्रेजेंट करना है, तो यू नीड टू रीड अगेन, कीप रीडिंग एंड रिफाइन योर ओन वर्क। आप खुद के बहुत अच्छे जज हो, आपको सबसे ज्यादा पता है कि आप कैसे हो, तो आपको रीड करते रहना है अपने ही आर्टवर्क को। मैं भी कभी कभार अपनी पुरानी कविताएं पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं कितना एमेच्योर लिखता था, या मैं अभी भी कितना एमेच्योर लिखता हूँ। आई कैन राइट सो मच बेटर। तो सिमिलर वे में जब आप भी कुछ लिखें तो उसको बार बार पढ़ने से आपको उस कविता को निखारने में और ज्यादा मदद मिलेगी। यस, उसके अलावा फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है आजकल ना, लोगों को कविताएं सुनने से ना बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। मतलब अगर आपको साराभाई वसी साराभाई अगर आपको याद होगा, तो उसमें मेरा एक बहुत फेवरेट कैरेक्टर था मिस्टर रोशेश साराभाई। वो अपनी कविताएं जब सुनाता था तब लोग इधर उधर भागने लगते थे। सो यस, बहुत सारी बार ऐसे भी होता है, जब आप कोई कविता करना चाहें या किसी को आप शेर सुनाना चाहे, तो जरूरी नहीं है कि आपका शेर अच्छा हो, या जरूरी नहीं है कि जिसको आप सुना रहे हैं वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो शेरो शायरी सुनने के काबिल है। तो आपको फीडबैक अच्छे से नहीं मिल पाएगा। पर फीडबैक हर राइटिंग वर्क के लिए या हर आर्ट वर्क के लिए, चाहे आप लिखना चाहे, चाहे आप पेंटिंग भी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी और आर्ट फॉर्म आप फॉलो करते हो, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप फीडबैक लेना चाहें, तो टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल विद डिफरेंट नेचर एंड चॉइस। आपको सिर्फ एक पर्सन के पास से फीडबैक नहीं लेना है, आपको काफी सारे लोगों के पास से फीडबैक लेना है। जो भी आपके अच्छे खासे बेसिकली आपके अच्छे कोई दोस्त हो, तो उनके पास आप हर एक के पास जा जाकर अपनी कविताएं सुनाइए। यस, रोशेस की बहुत फेमस कविता है, मोमा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स, पर्स में पड़ा टिश्यू पेपर करता है पसीने का इलाज, और लिपस्टिक है जैसे भूखे होठों का अनाज। एक बहुत ज्यादा अजीब का पोएट्री थी जिसने हम सभी को बहुत हंसाया था। लेकिन आप जब भी देखोगे तो उससे रोशे से एक मिस्टेक बहुत होती थी, वो हमेशा अपनी कविता उन लोगों को सुनाता था जो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रखते थे खुद के लिए। मतलब उसके लिए बहुत, जैसे कि इंद्रवदन जो उसकी कविताएं सुनकर उसके ऊपर पानी वगैरह फेंक देता था, साहिल जो उसकी कविताएं सुनना ही नहीं चाहता था, वो कहता था अरे एक काम करो, तुमने जो कविता लिखी उसको पोस्ट करके आओ। सो कहने का मतलब क्या है गाइस, रियल लाइफ में, बेसिकली रियल लाइफ में you need to write your particular thing, you need to read your particular artwork, and you need to also take it to the people। आपको लोगों के पास से फीडबैक भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फीडबैक में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फीडबैक विल इंप्रूव योर थिंकिंग एंड राइटिंग। जैसे जैसे लोग आपको फीडबैक देंगे, वैसे वैसे लोग आपको आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव भी करेंगे। बहुत सारी बार आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कविता कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कोई आप जिसको कविता सुना रहे हैं उसने आपको एक पॉइंट दिया जिससे आपको समझ में आया कि ओ मैं यहाँ पर बहुत गलत हूँ, तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी इंप्रूव होगी। सो यस, फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारा भाई की बात करने जाए तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो बहुत ज्यादा मजेदार है। सो यस इसके अलावा
वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत बार कविताएं करना चाहता हूँ तो चालू करता हूँ तो मैं बहुत लंबी लंबी कविताएं करता हूँ। अब होता क्या है, शुरुआत में तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जैसे जैसे कविता आगे बढ़ने लगती है लोग बोर होने लगते हैं। आजकल एक्चुअली में हम सबके पास टाइम नहीं है गाइस। सो डेफिनेटली जब आप किसी और के लिए शायरी लिखना चाहे या खुद के लिए भी आप शायरी लिखना चाहे, तो आप उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश कीजिए। तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपके पास अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे आपको, एंड यू कैन मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। तो कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितनी कम रखेंगे, जितनी छोटी रखेंगे, उतनी आपको और लोगों को सबको पसंद आएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर काफी सारी बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आनी चाहिए, दूसरों को कैसी लगती है, लेकिन इन सब के बेसिकली इन सब के बावजूद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप जब भी लिखें, राइटिंग इज एन आर्ट वर्क, यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद के लिए नहीं लिख रहे हैं तो टेक्निकली आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर लिख रहे हैं तो खुद के लिए लिखिए। लोगों को पसंद आ रही है वो चीज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी लोगों को सिर्फ पसंद आए इसलिए मत लिखिएगा गाइस। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप वही लिखिए जो आपको पसंद है। जरूरी नहीं है कि हर चीजों पर आपको लिखना हो, जरूरी नहीं है कि हर इवेंट पर आपको कुछ लिखना ही हो, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो आप खुद के लिए लिखिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लिखिए। जिस दिन आप दूसरों के लिए लिखना शुरू कर देंगे, आप एक्चुअली में एक प्रोफेशनल हो जाएंगे और आप उस चीज को एंजॉय कम करेंगे। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जैसे आप अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जो रेस्टोरेंट का शेफ जो खाना बनाता है और जो मॉम खाना बनाती है, जो अपनी माँ खाना बनाती है, उसमें जो डिफरेंस है वही शायरी किसी और के लिए करने में और अपनों के लिए करने में या अपने के लिए करने में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। जब माँ खाना बनाती है तो उनका खाना टेस्टी लगता है, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टेस्टी जरूर लगता है, लेकिन उस शेफ को खाना बनाने में जरूरी नहीं है हर डिश को बनाने में वो शेफ को बहुत मजा है, लेकिन मॉम जब भी अपने लिए खाना बनाती है तब बहुत ज्यादा उसको मजा आता है। तो सिमिलर वे में जब भी आप कोई भी शायरी करें, जब भी आप कुछ पोएट्री लिखें या कभी भी कोई भी चीज लिखें, यू डू इट फॉर योर सेल्फ, आप आपके लिए लिखें। इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं जानता हूं कि यहाँ पर काफी सारे लोग यूथ हैं जो कि मेरी एज के, जो कि अंडर 30 है, या फिर अगर आप बड़े एज के भी हो, अगर आपके पास लिखने की क्षमता है, इफ यू कैन राइट गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जब भी कुछ लिखना चाहें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखें, क्योंकि एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, चाणक्य आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके वर्ड्स, उनकी राइटिंग्स आज भी हमारे पास है। अमीर खुसरो हमारे साथ नहीं है, कबीर जी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी राइटिंग आज भी हमारे पास है। सो कहने का मतलब, आप जो भी लिखते हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स उन्हीं चीजों को पढ़कर, उन्हीं चीजों को एक्चुअली में समझकर आपके बारे में एक धारणा बनाएगी, आपके काल के बारे में या आपके जो जनरेशन के बारे में एक पर्टिकुलर एक परसेप्शन बना लेगी। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू राइट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू हैव टू राइट विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप अगर कोई फैक्ट लिखना चाहते हैं, कहीं पर आप अगर कोई स्किट में अगर आप कोई चीज बोलना चाहते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा, बार बार नहीं 1000 बार चेक करना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं क्या वो 100% सही है या गलत है। क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि मेरे को कहने से क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन यस, अगर उसमें से, अगर आपका जो नाटक देख रहे हैं या आपकी जो कविता सुन रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, अगर उन लोगों में से किसी 5 या 6 जन ने भी आपकी उस कविता को सच मान लिया जो कि आपने झूठ में लिखी है, तो फिर भी वो एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा गाइस। सो यस, आपको लिखने की अगर कला है तो कला के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होकर लिखना है, आपको गलत या रॉन्ग फैक्चुअल थिंग्स नहीं लिखना है। सो इसके अलावा गाइज, एक इस सब चीजों के अलावा, विद दिस टेक्निकली वी एंड टुडे सेशन। मैं एक लास्ट में अपनी एक कविता मैंने लिखी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके बाद वी कैन टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स। तो ये कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइज। हर दिन जिंदगी से कुछ सीखता हूं, मैं लिखता हूं। चाहने वाले तो बहुत है जिंदगी में, मगर अक्सर अकेली ही मुश्किलों से निपटता हूं। जरूरत महसूस नहीं होती किसी और की, तन्हाइयों में इन अल्फाजों से लिपटता हूं। खुद की कीमत का अंदाजा नहीं है मुझे, महफिलों में बस तालियों से बिकता हूं। तस्वीरों में ना ढूंढो मुझे, कलाम से निकली हुई इन पंक्तियों में दिखता हूं। दौलत नहीं है मगर सुकून से जीता हूं, मैं लिखता हूं। सो विद दिस गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने तुमको ज्यादा बोर नहीं किया है, एंड आई होप तुम लोगों ने कुछ सीखा होगा इस चीज से।
इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, या फिर आपने कुछ सीखा है आज, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ अच्छा वे में कुछ कर पाएंगे, सो प्लीज डू गिव मी अ फीडबैक. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो जरूर कीजिए, मुझे उस पूछिए, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा. एंड यस, चाय की चुस्की लो और लिखते रहो. जो लोग मुझे जानते हैं, ये चाय की चुस्की ये मेरा इंस्पिरेशन है. जब भी मैं चाय पीता हूँ तभी मैं इंस्पायर होता हूँ कुछ लिखने के लिए. हर किसी की अलग अलग चीजें होती है. सो यस, थैंक यू वेरी मच. अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या कुछ बताना चाहते, कुछ शेयर करना चाहते, तो जरूर आप चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए.